Hello, students. So, today we are going to cover our chapter number 2 of civics, that is diversity and discrimination. So, in this chapter, we will understand what a diversity is that we had already covered in our previous chapter, and how sometimes this diversity leads to the discrimination, practice of discrimination. So, in your previous chapter, that was understanding diversity, you understood how India as a country is full of diversity. So, we can see a lot of diversity in our country on various bases, from languages to religion, religions to caste, caste to status of the people or geography. So, in India, we find a lot of diversity. इतनी सारी विभिन्नताएं हमें अपने देश में मिलती हैं, एंड दैट हैज बीन मेंशन इन योर चैप्टर ऑल्सो. देर आर मेजर 8 religions which are found in India. The people of all the main 8 religions in the world, they are found and they are practicing their religions in India. So we have Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism, then Zoroastrianism. So different kinds of religions are there in our country. Then we have a diversity of culture. We have culture in every state which is different from the culture of another state, so that we can understand. Then we have the diversity of languages. In your book it has been already mentioned there are 1600 kinds of languages which the people use in India as their mother tongue. 1600 languages. And then we have the different kinds of dance forms also. So through this thing we had understood India is a diverse country. A lot of diversity is there. And the best thing about India is that, in spite of all these diversity, our country has unity in that diversity. So, all these diverse things lead to us towards the path of unity. That is the beauty of India. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज होंगी, इतने अलग अलग तरह के लोग होंगे, वहाँ पर कभी ना कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे. बिकॉज द पीपल हु थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अस, द पीपल who have a different kind of culture or language or religion, we can have some kind of differences also. So that is obvious कि जहाँ diversity होगी वहाँ पे कुछ differences भी होंगे. So diversity gives birth to differences, and sometimes differences lead towards prejudice. So ये अब नया word आ गया आपके सामने, prejudice. So first thing we have to understand what is prejudice. तो प्रीजुडिस के बारे में आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. प्रीजुडिस मीन्स टू जज द अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर टू अस. हियर दिस डेफिनेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू कि prejudice is a kind of preconceived opinion of another person, not based on reason or experience, but already you have an opinion about a person or a place or a good or a thing. आपने ऑलरेडी बिना किसी को एक्सपीरियंस किए हुए, बिना किसी के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ के, आपने एक ओपिनियन बना ली कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर जगह, ये पर्टिकुलर रिलीजन अच्छा है या बुरा है. आप पहले से ही सोच लो, तो देन यू आर अ प्रीजुडिस माइंड. दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस. दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन. And let me give you one example that you all agree. You all the students who are studying in class 6 will agree, and even class 7, 8, 9, 10, plus 1, plus 2, we all agree that कि sometime we make opinion about the other people or other things without testing them. For example, लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेबल. सपोज हम बात करें घिए की सब्जी या टिंडे की सब्जी. ठीक है, तो जब आपकी मदर आपको कहती होंगी कि आज मैंने घिया बनाया, आप खा लो, तो हो सकता है कि आप में से कभी किसी ने उसको ट्राई ना किया हो, उसका टेस्ट ट्राई ना किया हो, लेकिन आपने पहले ही ओपिनियन बना ली कि इसका नाम ही घिया है, इसका नाम ही तोरी है, इसका नाम ही टिंडा है, तो ये बेकार होगा. और आप उसको कभी टेस्ट भी नहीं करते,
और पहले से ओपिनियन बना लेते हैं। फिर एक दिन जब आपके फादर फोर्स करते हैं कि आज तो खानी पड़ेगी, एंड सडनली यू टेस्ट द वेजिटेबल और आपको लगता है नहीं यार ये तो इतनी खराब नहीं है जितना मैं सोचता था नाम सुन के। सो दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस्ड। ठीक है, दैट एंड दैट थिंग इज दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्रीजुडिस्ड बिहेवियर। आई होप you understood what is prejudice. Now let's move to the another example to understand this word prejudice. A beautiful example has been given in your book. आपको दे रखा है कि रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल, उनको लेकर हमारी क्या ओपिनियन है। द पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरिया, इन द सिटी साइड एरिया, what they think about the people who are living in the countryside, village side area, village people, and vice versa, the people who are living in the villages, what they think about the people who are living in the cities, in the urban center, उनका क्या सोचना है एक दूसरे के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। हम इसका क्रक्स निकालेंगे कि मेन पॉइंट क्या है। हम अक्सर सोचते हैं द पीपल हु आर लिविंग इन रूरल साइड एरिया, इन द कंट्री साइड एरिया, दे आर वेरी वेरी बैकवर्ड पीपल, एंड नॉट ओनली दीज पीपल आर बैकवर्ड because of many kinds of things which we have prejudice. At the same time we feel that these people are full of superstitions. ये तो जादू टोने में यकीन रखते हैं, ये बिल्कुल बैकवर्ड हैं, ये हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, they do not care about the not only the health issue but the cleanliness issue also, which leads to the several kinds of diseases. But on the other hand, what kind of prejudice the village side people think about, village side people have about the people living in the urban area? The first thing, they believe that these people who are living in the city side area, they are very money minded, very cunning and clever people. They do not have innocence. And the second common prejudice about the people who are living in the city side area is that they are very lazy, very lethargic they are. वो उतने बहुत सुस्त हैं, वो हेल्दी नहीं होते, उनसे भारी काम नहीं होता. So these kinds of prejudice we have, we the people of the city side have against the people living in countrysides, and similarly the people of the countryside area, village side area, they have some set of prejudice against the people living in the urban centers, living in the cities. I hope you understood this example also, through this example also, कि prejudice कहते किसको हैं। जब हमने पहले से ही कोई ओपिनियन बना ली लोगों के बारे में कि कुछ लोग ऐसे हैं बिना उनको चेक किए हुए, और हम जब अपनी ओपिनियन किसी एक दो पर्सन्स को देखकर सब पर अप्लाई कर दें। अब ना तो सारे विलेज साइड में रहने वाले लोग जो हैं वो सुपरस्टिशियस होते हैं, वो क्लीनलीनेस को लेकर बेपरवाह होते हैं, और ना ही सारे शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो कनिंग और मनी माइंडेड होते हैं और वो बिल्कुल लेथार्जिक होते हैं. So now let's move to the next topic, that is creating stereotypes. So we are going to understand the meaning of this word stereotypes. So prejudice we have understood. Now what is a stereotype? So here comes the definition. A stereotype is a popular belief about specific social groups. So प्रीजुडिस हम किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ पहले से ही प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लेते हैं. और स्टीरियोटाइप में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. व्हेन वी मेक एन ओपिनियन रिगार्डिंग वन स्पेसिफिक कम्युनिटी बेस्ड ऑन आवर प्रायर अजम्पशन, पहले से ही हमने सोच रखा है कि ये कम्युनिटी अच्छी है या बुरी है, ये वेल बिहेव्ड है या इल बिहेव्ड है. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में आपके सामने है. इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर किया जा रहा है कि हाउ वी हैव सर्टन काइंड्स ऑफ प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट द विमेन, अगेंस्ट द गर्ल्स, कि वो क्या कर सकती हैं या उन्हें क्या करना चाहिए, और इवन अगेंस्ट द बॉयज़ ऑल्सो, कि अगर बॉयज़ हैं तो वो क्या करते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. तो लेट्स सी दिस फॉलोइंग चार्ट गिवन हियर. यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन. बॉयज़ के लिए इनमें से कौन सी बात अप्रोप्रिएट है और गर्ल्स के लिए कौन सी है, उन दोनों को आपने बॉयज़ के कॉलम और गर्ल्स के कॉलम में अलग अलग बांटना है. तो आप एक बार चेक करिए और एकदम से आप अपना जवाब सोचिए कि क्या आपका राइट आंसर है. ये
पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक और फीचर बॉयज से जुड़ी हुई है या गर्ल से? लेट्स रीड देम आउट वन बाय वन. सो फर्स्ट वन, दे आर ऑल वेल बिहेव्ड. ये किसके साथ जाता है, बॉयज के साथ या गर्ल्स के साथ? आपको पता है ऑब्वियसली गर्ल्स के साथ. दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल. अगेन जनरली वी बिलीव दैट दिस इज द क्वालिटी ऑफ गर्ल्स. दे आर वेरी नॉटी एंड दे आर फिजिकली स्ट्रांग. तो जनरली ये स्टीरियोटाइप है बॉयज को लेकर. दे आर वेरी राउडी, ये भी बॉयज को लेकर. दे डोंट क्राई, आप बड़े आराम से इसको इस कॉलम में डाल सकते हैं बॉयज के. दे आर गुड एट कुकिंग. तो आंसर आएगा ये गर्ल्स की पर्टिकुलर ट्रेट है या फीचर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है. एंड दे आर इमोशनल, अगेन ये फिर गर्ल्स के साथ जुड़ी हुई बात है. तो क्या इसका मतलब ये है कि दे डोंट क्राई का मतलब है वो रोते नहीं है? तो क्या सिर्फ गर्ल्स रोती हैं और बॉयज नहीं रोते? या दे आर वेरी राउडी, तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ बॉयज ही राउडी होते हैं और गर्ल्स राउडी नहीं हो सकती? दे आर गुड इन कुकिंग, तो क्या इसका मतलब सिर्फ गर्ल्स ही कुकिंग में अच्छी हो सकती है, बॉयज नहीं हो सकते? और जो आपको और दिए हुए हैं यहाँ पे फीचर्स, तो यू कैन रेज अ क्वेश्चन कि क्या ये सिर्फ बॉयज के साथ ही फीचर्स जुड़ी हुई हैं, ये गर्ल्स के साथ एप्लीकेबल नहीं है? या ये फीचर सिर्फ गर्ल्स के साथ जुड़ी हुई हैं और बॉयज के साथ ये फीचर्स अप्लाई नहीं होती? तो आपको पता लगेगा कि ऑल दीज आर स्टीरियोटाइप्स, कि अगर हम जनरली इन फीचर्स को गर्ल्स के साथ जोड़ रहे हैं तो देन दीज आर द स्टीरियोटाइप्स जो कि हमने सुनकर या आसपास बड़े होते हुए हमने अक्सर ये देखा है कि अगर ये राउडी है या अगर ये लाउड है तो ये बॉयज की क्वालिटी है, और अगर वो बहुत डिसेंट है तो ये गर्ल्स की क्वालिटी है. अदरवाइज गर्ल्स भी लाउड हो सकती हैं, राउडी हो सकती हैं, और बॉयज भी डिसेंट हो सकते हैं. और सिमिलरली गर्ल्स भी स्ट्रांग हो सकती हैं और बॉयज जो हैं वो भी रो सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज माई फेवरेट वन. कि इस स्लाइड में आप देखिए कि दोबारा से इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए आपको क्या दिखा रहे हैं. लेट्स सी. सो दिस स्लाइड शोज द boys can also be sensitive, they can also be caring, they can be quiet, they can be gentle, they can be artistic, they can be dreamers also, they can also be scared of several things. So ये सारी फीचर्स बॉय के साथ भी हो सकती हैं जिसको हम जनरली गर्ल्स के साथ एसोसिएट करते हैं. सिमिलरली द गर्ल्स कैन ऑल्सो बी लाउड, दे कैन ऑल्सो बी क्रैंकी समटाइम्स, gross, they can also behave silly, they can obviously also be strong, and they can also lead their groups. So I hope you understand what is stereotype through this particular example. So let's move to our next topic. This very next page that has been given in your NCERT, again showing the stereotypes against the फिजिकली डिसेबल्ड पीपल. तो जब हम किसी डिसेबल्ड पर्सन को देखते हैं, जिनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वी हैव गिवन अ न्यू टर्म टू देम, तो हम सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स कम इन आवर माइंड कि क्या ये काम वो कर सकते हैं, क्या वो मेंटली भी उतने स्ट्रांग हैं, या मेंटली भी अपनी फिजिकली कंडीशन की तरह दे आर ऑल्सो मेंटली वीक. तो अगेन वी आर प्रैक्टिसिंग द स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट दोज पीपल हु आर फिजिकली डिसेबल्ड. Now, the next topic is inequality and discrimination. So, what is discrimination? Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. तो जब हम अपने prejudice के बेसिस पे, अपने stereotypes के बेसिस पे बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट अ इंडिविजुअल और अगेंस्ट द एंटायर कम्युनिटी, हम पहले से ही उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं, और जनरली दिस ओपिनियन इज नेगेटिव इन टर्म. तो एक तरह से वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द डिस्क्रिमिनेशन. सो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजंस. So the first, we discriminate the people who speak the different language or who following a different kind of religion, or those who have a different customs and practices. Their culture is different. So this is the first reason because of which we discriminate against the people, because we have already a prejudiced mind or we have certain kinds of stereotypes
against those people. So we do that kind of discrimination. Then we discriminate against the people on the basis of the status also. Status means rich or poor people. So economic background, that also plays a very important role, not only to create certain kinds of discrimination against the people, but also making a certain kinds of stereotypes in our mind. So generally the rich people think that the poor people, they are very lazy, they shirk work, they do not want to work harder to earn money. And on the other hand, the poor people also have certain kinds of stereotypes against the rich people. And then comes the third group, which faces both kinds of discrimination. So these people are poor and belong to that kind of culture which is not valued by the other people, and economically also they are very poor. For example, the tribal community people, or some caste in our country India in the past time, they were considered the lower caste people. So for example, these people, they used to do the petty jobs in the society, like picking up the garbage, like cleaning the, or doing the scavenging work, नालियों को साफ करने का काम, डेड एनिमल्स को लेकर जाने का काम. तो एक तरफ तो उनसे ये काम करवाया गया, और फिर दूसरी तरफ उनको अपने से अलग भी किया गया, क्योंकि वो ये पेटी टास्क कर रहे हैं, छोटे काम कर रहे हैं, तो दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट. तो आपकी बुक में इसी बात को हाईलाइट किया हुआ है कि किस तरीके से जब हम किसी के बारे में प्रीजुडिस बना लेते हैं, तो वो फिर अगला स्टेज आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन का. देन वी स्टार्ट मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दो सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल. तो अब हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, या एक थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 से लेकर 49 के बीच में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिटन फॉर्म में कलेक्ट कर रही थी. तो वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, he belonged to a Mahar community that belongs to one particular region that is called Maharashtra. महाराष्ट्र के महार कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे. और उस समय आज़ादी से 100-200 साल पहले these communities were considered untouchables. क्यों? क्योंकि वो लोअर और पेटी जॉब्स किया करती थी, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप यही काम करेंगे. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिसके थ्रू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि कैसे when he was studying in the school, he was forced by the teachers and school to sit outside the classroom, and he was not allowed to drink water from the tap, from the head pump, because he belonged to a untouchable caste. तो जब तक कोई पानी पिलाने नहीं आएगा, तब तक उनको पानी भी पीने नहीं दिया जाएगा, उनको स्कूल में बाहर बिठाया जाएगा. These kinds of atrocities, these kinds of discrimination he faced in his school life. लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको हम बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ 20th century, we give respect to him. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतनी सारी हर्डल्स के बावजूद भी वो अपनी टाइम के सबसे एजुकेटेड पर्सन्स में से एक थे, जिनके पास बहुत सारी डॉक्टरेट की डिग्रीज थी. और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए संविधान बनाने का. दैट्स व्हाई ही इज समटाइम्स गिवन द टाइटल द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ा, बिकॉज इन द सोसाइटी the people had certain kinds of prejudices and stereotypes against the people of lower caste. I hope you understand here this particular chapter. इसके सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हों. अब इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एंड व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, देन वी डिसाइडेड टू
मेक द डेस्टिनी ऑफ आवर कंट्री बाय आवर सेल्फ। और तब हमने क्या डिसाइड किया अपने लिए कि वी विल provide equality to everyone in our country, whosoever is living in our country, whosoever is the citizen of this country, that will be treated equally। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात पे पूरा ध्यान दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का हक दे, सबको इक्वल राइट्स दे। और these equal rights were provided to Dalit community people also who were discriminated on the basis of the caste, tribal community people also, women also जिनको की फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी का राइट्स नहीं थे, उनको भी ये इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, एंड द पीजेंट्स ऑल्सो। तो इस तरीके से हमने इक्वालिटी को लेकर हमने certain steps had been taken by our leaders to ensure that no discrimination, no prejudice, no stereotypes prevail in our society. So Indian Constitution provides the right to equality also, and certain kinds of freedoms also। और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अब जो है वो हमने उसको इलीगल डिक्लेयर किया है, एंड दैट इज अ पनिशेबल क्राइम। So I hope now you understood each and everything. Thanks for watching the video. Have a nice day.